Assalamualaikum students, this is Sonia Rafiq from English with Fatima. So welcome back to another amazing lesson. So students, in our previous videos we learned कि how can we describe positive personalities in English या वो लोग जिन्हें हम admire करते हैं, we love them, we appreciate them, उन्हें किस तरह से English में best way में describe कर सकते हैं, ये हमने previous videos में सीखा. But now in today's video we are gonna learn how can we describe negative personality traits that push people away from you, जिनकी वजह से लोग आपसे दूर हो जाते हैं. वो ऐसी कौन सी negative traits हैं, and above all how can you fix them. So this video is actually, it's gonna be a kind of motivational boost for you, packed with good vibes, and yes, definitely you will grab a lot from it. So stick around, don't miss, stay with me till the end, because sometimes it happens, you meet someone who looks perfect, but the moment they speak, you instantly feel uncomfortable. Oh my god, maybe they interrupt too much. बहुत ज़्यादा उन्हें बोलने की आदत होती है, इंटरप्ट करने की आदत होती है, हर वक्त वो अपने बारे में बोल रहे होते हैं, एंड दे मेक यू फील स्मॉल विदाउट इवन रियलाइजिंग इट. You see, it's not just what we say, but how we behave that defines us. So today I'm going to share 9 personality traits that can secretly make people dislike us. ठीक है, जिनकी वजह से लोग हमें dislike कर सकते हैं. So how can we avoid them? Everything we are gonna discuss. So grab your notebook and let's talk about what really makes a person lovable and what doesn't. So bossy. Well, yes, means, always controlling others. I have seen a lot of people, who always say, do this, don't do this, sit here, talk like this. That's being bossy. So if you can say, she's a bit bossy and tells everyone what to do. Students, remember, being a leader is good, but controlling others isn't. ठीक है, कोई भी ये पसंद नहीं करता है कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए या बार बार उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाए. People don't like being ordered around. They like being respected. So instead of saying, do it like this, try to say, what if we try this way? यानी अगर हम ये करने की कोशिश करें, see the difference. And obviously it will make them feel good. So if you are having this habit, try to overcome this and try to replace this with a good one. Unreliable, यानी जिस पे इतबार नहीं किया जा सकता. एक बंदा जो बिल्कुल अपनी कही हुई बात पर अमल नहीं करता. नॉट डिपेंडेबल, उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अनरिलायबल. यू नेवर नो इफ ही विल शो अप. So reliability is like glue. It holds relationships together. Like imagine, आप किसी फ्रेंड ने आपसे प्रॉमिस किया कि I'll be there, मैं आऊँगा, एंड आप जाते हैं, उससे मिलते हैं, बट वो नहीं आता. सो इससे क्या होगा? यू नो दे you will start losing your trust. So be that person others can count on. ऐसा इंसान बने जिस पे लोग ट्रस्ट कर सके, बिकॉज रिलायबिलिटी इज रेयर एंड रेयर थिंग्स दे आर ऑलवेज वैल्यूएबल. सो द नेक्स्ट वर्ड इज ओवर कॉन्फिडेंट, यानी अपने आप पर हद से ज़्यादा यकीन होना. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लेट मी क्लियर, देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना बड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है. कॉन्फिडेंस सेज I can do it. This is called confidence. Overconfidence says only I can do it. बस मैं ही ये कर सकता हूँ, मेरे से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता. See the difference. Confidence inspire करता है, over confidence ये isolate करता है. So always keep your mind open. Even the best can learn from others. कोशिश करें, मैं भी कर सकता हूँ, बट फिर भी इस mindset के साथ रहें कि मुझे दूसरों से learn करना है. Right? So you can say he is overconfident and ignores advice. मतलब वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. वो उसे लगता है कि बस ही इज ऑलवेज राइट. केयरलेस, लापरवाह, he doesn't pay attention. For example, she is careless and often forgets important things.
यू नो जो केयरलेस लोग होते हैं दे फॉरगेट एवरीथिंग, बर्थडेज, थिंग्स, दे मिस डेडलाइंस एंड देन से उप्स माय बैड। यू नो अक्सर लोग इतना बड़ा ब्लंडर करके भी दे कीप सेइंग उप्स माय बैड। वेल इट मे सीम स्मॉल, बज़ाहिर तो ये छोटा अमल लगता है बट इट हर्ट्स अदर्स एंड यू इमेजिन यू नो यूर एक्चुअली ये दूसरों को हर्ट करता है और इससे उस बंदे का इमेज भी स्पॉयल होता है। सो पे अटेंशन, डबल चेक योर वर्क बिकॉज स्मॉल केयरलेसनेस कैन कॉस्ट बिग अपॉर्चुनिटीज। टॉकेटिव यानी बहुत बोलने वाला। शी इज़ फ्रेंडली बट अ लिटल टू टॉकेटिव। वो फ्रेंडली है बट बहुत टॉकेटिव है, बहुत बोलती है, शी टॉक्स टू मच। ओके, सो दिस वन इज ट्रिकी बिकॉज बीइंग टॉकेटिव इट्स नॉट ऑलवेज बैड। ये बुरा नहीं होता है, सो इसको हम एक बैड ट्रेट के तौर पर नहीं लेंगे। बट व्हेन वी टॉक मोर देन वी लिसन, कॉन्वर्सेशंस बिकम वन साइडेड। ठीक है, जब हम बोलने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा बोलने पे फोकस करते हैं ना, फिर होता क्या है कि सुनने वाला इंटरेस्ट अपना खो देता है। बिकॉज गुड कम्युनिकेशन इज 50% स्पीकिंग एंड 50% लिसनिंग। सो नेक्स्ट टाइम टेक अ पॉज, लेट अदर्स स्पीक टू, यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाट यू लर्न। नैरो माइंडेड यानी तंग जहन होना, नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज। सो यू कैन से ही इज नैरो माइंडेड एंड डिसलाइक चेंजेस। अ नैरो माइंडेड पर्सन जो होता है ना, एक्चुअली जो नैरो माइंड होता है इट ब्लॉक्स ग्रोथ। इट सेज माई वे इज द ओनली वे। ठीक है, ये एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंट होना भी आ जाता है। जो नैरो माइंडेड बंदा होता है ना, वो कहते हैं कि जो मेरे बिलीव्स हैं, ठीक है, जो माई वे है दैट्स द ओनली वे। बट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कलर्स, ओपिनियंस, कल्चर्स। वेन यू ओपन योर माइंड यू स्टार्ट लर्निंग। ऐसे बंदे की लर्निंग रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सो कोशिश करें अपने माइंडसेट को थोड़ा सा ओपन रखें, दूसरे लोगों को सुनने की आदत डालें। ट्रस्ट मी, यू विल लर्न लॉट। बी क्यूरियस, नॉट जजमेंटल, बिकॉज ओपन माइंडेडनेस डजंट चेंज हु यू आर। टू सम एक्सटेंट दे आर अफ्रेड ऑफ चेंज। ठीक है, वो उन्हें ये भी डर होता है कि अगर वो दूसरों को सुनना शुरू करेंगे तो मे बी उनका माइंडसेट चेंज हो जाए। रिमेंबर, ओपन माइंडेडनेस डजंट चेंज हु यू आर, इट मेक्स यू वाइजर। बल्कि ये आपका विजडम, आपका एक्सपोयर बढ़ता है इससे। ग्रम्पी, यू नो ईजीली अनॉयड, मतलब जो बंदा बहुत जल्द चिढ़ जाता है। ही इज़ ऑलवेज ग्रम्पी इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जब उठता है ना वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। Oof, that person who wakes up like don't talk to me. I have seen a lot of people जब वो सुबह सो के उठते हैं ना, they are like no, don't disturb me, don't talk to me. Well, yeah, we all have bad days, but being constantly grumpy pushes people away. अगर आप जो constantly you stay grumpy, then obviously it can people push away from you. No one enjoys being around negative energy. कोई भी पसंद नहीं करता है कि उसे आपसे नेगेटिव वाइब मिले, वो ऐसे बंदे के पास रहे जिससे नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। सो ट्राई स्माइलिंग मोर इवन व्हेन इट्स हार्ड। इट्स अमेजिंग हाउ मच इट चेंजेस योर डे एंड अदर्स। बोस्टफुल, बोस्टफुल बहुत ज़्यादा घुमंडी होना, ऑलवेज ब्रैग्स अबाउट अचीवमेंट्स, अपने बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में शेखी बिगाड़ना, so we can say he's boastful and can't stop talking about his success. I did this, they are like, I did this, I achieved that, I'm the best. Sound familiar? We all know that one person who just can't stop talking about themselves. कोई भी ऐसे बंदे को पसंद नहीं करते जो हर टाइम अपनी ही तारीफें कर रहा हो। कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटीज आर लाउड। Let your actions speak. That's how real winners shine. Unkind means not nice or gentle. She made some unkind remarks that hurt others. Words are powerful. Sometimes we don't even mean to hurt someone, but our tone or attitude cuts deep. बाज़ हम कोई वर्ड ऐसा नहीं कहते, लेकिन हमारी टोन ऐसी होती है जिससे नेक्स्ट पर्सन फील्स एम्बेरस्ड। यू नेवर नो व्हाट समवन इज गोइंग थ्रू। आपको नहीं पता कि अगला बंदा पहले ही क्या सफ़र कर रहा है। सो ऑलवेज चूज काइंडनेस, चूज योर वर्ड्स। बीइंग काइंड डजंट कॉस्ट एनीथिंग। ठीक है, इस पर कोई खर्चा नहीं आता है काइंड होने में, बट इट कैन हील समवन्स हर्ट। आपकी अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस इट कैन हील समवन्स हर्ट। इसी से अगले को बड़ा एक हौसला मिल जाता है। So that's all about today. Coming towards conclusion, students,
um, these are the traits that may sound small, but together they can slowly destroy your personality. ये कुछ traits थी that can destroy your personality. Try to replace them with good ones. So promise yourself from today you will speak kindly, listen patiently, and lead gently. Because in the end, people won't remember how you looked or what you said, they will remember how you made them feel. So thank you so much for watching this video. Here is an assignment for you. So what you have to do, um, here is an assignment for your speaking practice. Try to record yourself explaining one negative trait and how to fix it in 1 to 2 minutes. Okay, try to use the vocabulary and examples from today's video, because this is how you will learn. Otherwise, you will forget everything.